Bismillahirrahmanirrahim. I am Syed Naqi Kazmi, Department of Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is Second Constituent Assembly of Pakistan. Let's start. The federal coalition in Yusuf Patel case had refrained Ghulam Muhammad and his nominated cabinet to make a constitution by an executive order. On 30th April 1955, the federal court unanimously declared that the task of framing a constitution would be performed by a constituent assembly. तो इस तरह गुलाम मोहम्मद को ये काम करने से रोक दिया गया क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये थी कि गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, लेकिन फेडरल कोर्ट ने ये ज़रूरी करार दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही बनाएगी. As a result of that decision, Governor General Ghulam Muhammad summoned a 60 members Constituent Convention to meet on 10th May 1955. The convention was to be elected from the existing provincial assemblies, and its function would be to replace the first Constituent Assembly. तो इस तरह गुलाम मोहम्मद ने एक कन्वेंशन कॉल किया 60 मेंबर्स का, और उसका काम ये था कि वो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जगह लेनी थी उसने, और एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करना था. The convention, unless dissolved earlier, would stand dissolved at the expiry of 6 months. It would be presided over by a person appointed by the Governor General. It was consisted upon 60 members. 7 were to be reserved for non-Muslim in East Pakistan. The number of the seats was distributed as follows. ईस्ट पाकिस्तान के लिए 30 थी, पंजाब के लिए 16, NWFP के लिए 3 और सिंध के लिए 4 थी. The remaining 7 members would be nominated by the Governor General based on one from Balochistan, Frontier State, Khairpur State, Bawalpur State, and Karachi. The tribal areas had 2 representatives. Within 15 days, 2 new orders were issued. The first was related to the method of election to the Constituent Convention. और इसमें जो इलेक्शन का मेथड रखा गया वो वही था जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बेस पे इससे इलेक्ट होना था विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. The Governor General issued a second amendment order on 27th April, under which the convention would have 80 members and would also function as the federal legislature. The new Constituent Convention would now have all powers which were exercised by the first Constituent Assembly under the provisions of the Section 8 of the Indian Independence Act 1947. The composition of the Constituent Convention now stood as. तो अब उसको फर्दर उसमें अमेंडमेंट करके उसकी स्ट्रेंथ को 60 से 80 कर दिया गया और उससे अथोराइज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन को कि वो एज ए फेडरल लेजिस्लेचर काम करेगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो अब उसकी जो कंपोजिशन थी वो कुछ इस तरह से थी. ईस्ट पाकिस्तान की 40 सीटें थी जिसमें 9 जो हैं वो गैर मुस्लिम के लिए रखी गई. पंजाब में 21 थी, एक माइनॉरिटी या गैर मुस्लिम के लिए रखी गई. NWFP में 4 थी और सिंध में 5 थी जिसमें से एक नॉन मुस्लिम के लिए रखी गई. और गवर्नर जनरल ने 10 जो मेंबर थे वो नॉमिनेट करने थे. एक बलूचिस्तान स्टेट यूनियन से एक, द फ्रंटियर स्टेट से एक, ट्राइबल एरिया से 3, खैरपुर स्टेट से एक, बावलपुर स्टेट से 2
और कराची से एक। तो इस तरह ये टोटल 80 मेंबर्स बन जाते थे कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन के, जिसमें से 40 ईस्ट पाकिस्तान के लिए और 40 वेस्ट पाकिस्तान के लिए थे। The composition of the convention was based on the principle of parity of representation between East and West Pakistan. In East Pakistan, the leader of the United Front, A.K. Fazl al-Haq, was threatening to boycott the Constituent Convention on the ground that it did not give East Pakistan a majority of seats based on population. तो अब पेरिटी बेस पे रिप्रेजेंटेशन दी गई दोनों विंग्स को, ईस्ट एंड वेस्ट को, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को इस पे एतराज़ था और उनके जो यूनाइटेड फ्रंट के उनके जो लीडर थे ए.के. फजल हक, उन्होंने इसको बाइकआउट करने की धमकी दी इसी ग्राउंड पे कि हमारी मेजॉरिटी है तो हमें सीट्स भी मेजॉरिटी की बेस पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें वेस्ट पाकिस्तान के साथ बराबरी की बुनियाद पर सीट्स मिली हैं। फिर उसके बाद उनकी कोई डील हुई मोहम्मद अली के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसमें कुछ इदारे जो पहले सस्पेंडेड थे ईस्ट पाकिस्तान में उन्हें बहाल कर दिया गया और इस तरह जो ईस्ट पाकिस्तान था वो भी इस कन्वेंशन को ज्वाइन करने पे राजी हो गया। In the first Constituent Assembly, the Muslim League had an absolute majority as it had taken almost all the Muslim seats. It was clear that from the start that the Muslim League was not enjoying the dominating position in the new assembly. Out of 309 members in the East Pakistan provincial legislature, the League only had 10 members and it could get one seat in the new assembly. In West Pakistan, the League took all the Muslim seats from Sindh and NWFP. अब जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग मेजॉरिटी में नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन में। और अगर देखा जाए तो जो ईस्ट पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली थी उसके 309 मेंबर थे, तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लीग की 10 मेंबर थे। तो इस तरह मुस्लिम लीग को वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन में एक सीट मिल सकती थी। इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान में जो तमाम सीट्स हैं सिंध और NWFP में, वो मुस्लिम लीग के पास थी। With 25 members in the House of 80, the Muslim League was still the largest single party in the new assembly, since no single party was in the position to command a majority. A coalition of the Muslim League and the United Front was ultimately formed, with Chaudhry Muhammad Ali, the former finance minister, as a prime minister, and Muhammad Ali Bogra resumed his old job as ambassador to the United States. अब चूंकि 80 मेंबर का हाउस था तो उसमें स्टिल मुस्लिम लीग के 25 मेंबर्स थे, तो वो मेजॉरिटी उसी की थी एज ए सिंगल पार्टी। लेकिन चूंकि सिंपल मेजॉरिटी किसी के पास नहीं थी तो इसलिए कोएलिशन गवर्नमेंट बननी थी, और ये कोएलिशन गवर्नमेंट मुस्लिम लीग और यूनाइटेड फ्रंट के दरमियान एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, जिसके नतीजे में चौधरी मोहम्मद अली को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और मोहम्मद अली बोगरा जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो वापस अपनी जो उनकी पुरानी जॉब थी एज एम्बेसडर ऑफ USA, तो वहीं पे वो चले गए एज एम्बेसडर ऑफ USA. The assembly first met on 7th July 1955 and immediately passed the Validation of Laws Act of 1955. The first important and highly controversial task performed by the Second Constituent Assembly was to make West Pakistan a one unit. The Second Constituent Assembly also had
the advantage of benefiting from the work of the previous assembly. The draft provided for a strong center. Draft for the first constitution was finally approved by the second constituent assembly. अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो सबसे कंट्रोवर्शियल काम किया वो वेस्ट पाकिस्तान को वन यूनिट बना दिया। और चूंकि दोनों विंग्स के दरमियान रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से मसाइल थे तो उन्होंने ये समझा कि वेस्ट पाकिस्तान को अगर वन यूनिट बना दिया जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा। और अब चूंकि पहली जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी थी तो उसने काफ़ी काम किया हुआ था। उसी के काम से फ़ायदा उठाते हुए सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया और जिसमें मोस्टली पावर सेंट्रलाइज थी, स्ट्रॉन्ग सेंटर था और उसे अप्रूव कर लिया गया और यही एज ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के तहत मुल्क में फिर नाफिज कर दिया गया। तो आज का ये मेरा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।